Assalamu alaikum kids. The topic that we'll be discussing today is probability. Now what probability is? Probability is basically the chances of a desired event to occur. Now what does that mean? let's discuss an example and then we'll try to figure out what probability is. For example, I roll a dice. मैंने एक dice roll किया and for example I'm playing Ludo with my friend and I needed to get home. और अगर मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता है कि भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट यू गेट टू ऑन द फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डाइस, तो अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए देखो क्या क्या चीज़ें चाहिए. सबसे पहले आई नीड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, दैट व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स दैट कैन अकर व्हेन आई रोल अ डाइस. तो अब देखो डाइस के फेस पे इधर इट कुड बी 1 2 3 4 5 or 6. इट कुड बी एनी नंबर बट इट मस्ट बी बिटवीन 1 or 6. So the total number of outcomes that I can have is 6. And what is the probability of, let's say here, let's write 2 here, for example, getting 2. So the probability of getting 2 here is there is only one chance of getting 2. So the probability of getting 2 when I roll a dice once is 1 by 6. Isn't it? Similarly, अगर इसी सवाल में एग्जामिनर आपको या मेरा फ्रेंड मुझसे पूछता कि भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एन इवन नंबर. अब देखो इवन नंबर कितने आ सकते हैं मेरे पास. इवन नंबर या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है. तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स ऑफ माई डिज़ायर्ड इवेंट, क्योंकि अब मेरा डिज़ायर्ड इवेंट है टू गेट एन इवन नंबर. तो फिर मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती, फिर मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाती 3/6. तो अगर इसी एग्जाम्पल को देखते हुए वी डिस्कस अ फार्मूला, तो फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. फॉर एग्जाम्पल द इवेंट वी कॉल हियर इज ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग और अकरिंग इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए के कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक फार्मूला विच यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मेमोराइज, ताकि आप आगे गलती ना करो. फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है एग्जामिनर कि देर इज़ अ बैग इन विच देर आर 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स एंड 4 green balls. Now let's say if I choose one ball from that particular bag, now what is the probability of, let's say, choosing a green ball? Again, what you'll do, you'll first find the total possible outcomes of it. So total possible outcomes will be, you can choose either from 3 red balls or 5 blue balls or 4 green balls. So you'll add them up, क्योंकि जो total number of balls हैं उस बैग में वो कितनी हैं, वो हैं 5 + 3 + 4 which will be 12. Now because we need green balls, अब हमारा desired event है green, तो out of those 12 balls there are 4 balls which are green. तो मेरे पास 4 ऐसे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 4 ऐसे पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं जिसमें मैं ग्रीन चूज़ करूँगा. तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी ऑफ चूजिंग ग्रीन विल बी 4, बिकॉज 4 इज़ द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ ग्रीन बॉल and 12 is the total number of outcomes. So 4/12, which will make it 1/3. So this will be your required answer. Up now, see in the similar question, if examiner asks you what is a probability of getting a black ball. Now when you look here, you are given with red balls or blue balls or green ball. An examiner is asking you to find black ball. Can you find black ball in this bag? You can never find it. तो ये बात समझना कि अगर आपके पास वो इवेंट हो ही नहीं सकता. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अभी रिसेंट टाइम में 2023-2024 के सीज़न में बार्सिलोना और लेट्स से रियल मैड्रिड का मैच हो रहा है, और मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेसी स्कोरिंग अ हैट्रिक. So because Messi is not part of the team, he cannot score. So the probability would be 0. Or similarly, Ronaldo, the chances of or the probability of Ronaldo scoring a hat trick or even a goal in that particular match is 0, because he is not even a part of playing 11. तो ये बात समझना किसी भी, so because there is no black ball, so the total possible outcomes of getting a black ball among red, green and blue balls is 0. So from here we understand one thing: the least probability that we can get from any function or
from any given condition is 0. और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इसी सवाल में एग्जामिनर कहते हैं भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से ऑल ईदर ऑफ रेड ब्लू और ग्रीन बॉल। तो आप बोलोगे यार मैं अगर बॉल चूज़ करूँगा और उसमें कलर ही 3 पड़े हुए हैं तो तीनों में से कोई एक कलर तो निकलेगा ना, और मुझे चाहिए भी वही कलर, तो मेरे डिज़ायर्ड आउटकम्स या मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर इक्वल, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ if I roll a dice, what is the probability of getting a number which is less than 7? तो there are all possible outcome, क्योंकि 7 से जब भी मैं डाइस को रोल करूँगा मेरे पास नंबर हमेशा 7 से छोटा ही आएगा, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज़ 1। अब ये बात समझ लेना, क्योंकि कुछ कभी कभार ना एग्जामिनर पेपर्स में इस तरह के सवाल दे देता है और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता होनी चाहिए बात कि probability will always remain between 0 and 1. Minimum probability या least probability of any event to occur is 0 and the maximum probability of that particular event to occur is 1. और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं द प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 0 and 1। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कंडीशन देखूं तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी विच वॉज 1/3, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डेसिमल लिखूँ तो इट विल बी 0.33 एंड इट विल मूव ऑन। So it will always remain between 0 and 1. And similarly, if there are only 2 events, for example, let me write it here ना ताकि you guys remember it. For example, किसी भी event के होने के या तो possible outcome या तो A हो सकता है या B हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों probabilities को add करूँगा तो it will always give me 1. अब अक्सर सवाल में एग्जामिनर क्या करता है, वो जो है ना आपको कोई एक probability दे देता है और उस कंडीशन में ना, जिस तरह से मैं इस मिसाल बनाता हूँ ना, एक एग्जांपल देखते हैं हम कि फॉर एग्जांपल इट सेज कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट रेन टुडे इज़ 1/5। अब देखो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो रेन होगी या रेन नहीं होगी, ऐसा ही है ना। रेन होने के जो चांसेस हैं, रेन होने के आउटकम्स मैं कह रहा हूँ, देयर आर 2 पॉसिबल इवेंट्स दैट कैन अकर। द फर्स्ट वन वेदर इट विल रेन और इट वोंट रेन, इजंट इट। इसके अलावा और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं बनता। तो अगर मुझे उसने कह दिया कि द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे इज़ 1/5, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वोंट रेन, तो व्हाट यू विल डू, इन दोनों के मिला के प्रोबेबिलिटी वी डिस्कस दिस, इट विल ऑलवेज बी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, probability that it won't rain will be, it does not rain, will always be 1 minus 1/5 which will give you 4/5। तो ये बात समझिएगा, ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर इस तरीके के सवाल देता है। और एक कीवर्ड याद रख लो, अक्सर जगहों पर जहाँ पर डज नॉट लिखा होता है ना, डज नॉट, तो जो भी प्रोबेबिलिटी दी हुई हो उसको 1 में से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। और इसी तरीके से ये हमने यहाँ पर बात की थी जब खाली 2 ही इवेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा इवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक डाइस को रोल किया और मुझे एग्जामिनर पूछता है कि भाई व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या अगर इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये बात समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन द फेस ऑफ अ डाइस, when you add them up it will always come out to be 1। तो जितने भी इवेंट्स होंगे अगर मैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ निकाल लूँ और उन सब को ऐड अप करूँ तो दे विल ऑलवेज कम आउट टू बी 1। फॉर एग्जांपल द एग्जांपल दैट वी डिस्कस्ड है ना। अब मुझे देखो, अगर इसी सवाल में हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल वॉज 3/12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल वॉज 5/12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल वॉज 4/12। Now when I simplify it, it will always come out to be 1 क्योंकि total outcomes ही है, तो it will be 3 plus, because denominator is same, you'll write 12 here, 3 plus 5 plus 4, that will make it 12/12, that will give you 1। तो total probability आपकी हमेशा 1 ही रहेगी। I hope you get this। अच्छा हम लोग इस वीडियो में सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना ओ लेवल्स या IGCSE के सिलेबस में आपके पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उससे ज़्यादा हम इसको आगे लेके नहीं जाएंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ ट्री डायग्राम। अब बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन रहती है हाउ डू वी ड्रॉ ट्री डायग्राम एंड हाउ डू वी राइट प्रोबेबिलिटीज़।
और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, विल डिस्कस देम वन बाय वन. नाउ सी what tree diagram is basically, it is a pictorial or it's a visualized form of all the possible probabilities of different events that can occur in a particular circumstances. तो फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन टॉस किया. अब कॉइन टॉस करने के बाद मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा कि जितने भी आउटकम्स हैं विल ऑलवेज राइट एट द एंड ऑफ दी ब्रांच. हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, ये ब्रांचेस कहलाती हैं, ठीक है. और जो भी उसकी प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉसिंग अ कॉइन, तो इधर आई कैन गेट हेड और टेल. तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 2, और लेट्स से हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2 और टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2. सो आई राइट probabilities here. Now see, let's discuss an example and then we'll move forward. For example, it says a bag contains 3 red balls, 5 blue balls and 4 green balls. A ball is chosen at random. Draw probability. Now see, we have 3 possible outcomes. It could, when you choose a ball, एक bag है जिसमें से you need to pick a ball. Now it could be either green, it could be either red, or it could be either blue. So there are 3 possible outcomes. तो अब जब हम डिसाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ट्री जब बना रहे होंगे तो इसमें कितनी ब्रांचेस बनाएंगे, हम 3 ब्रांचेस बनाएंगे कि ईदर योर आंसर कुड बी रेड और ब्लू और ग्रीन. फिर प्रोबेबिलिटीज़ कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी निकालना आती है. व्हाट विल डू, विल ऐड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स एंड we divide the number of red balls with the total number of balls, which will be 3/12, which will give me 1/4. Similarly for blue balls it will be 5/12, and for green ball it will be 1/3. And I'll write the probabilities here. I hope you get this. Acha, before discussing this particular example which is on display here, now there are words which you need to look for. अगर उन वर्ड्स को आपने देख लिया और आपको समझ में आ गई तो थिंग्स विल गेट वेरी इजी. अगर नहीं तो फिर थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट. लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट आंसर विल बी. नाउ इट सेज a bag contains 3 red balls, 5 blue balls and 4 green balls. Now how many balls are chosen? There are 2 balls chosen. So whenever there are 2 balls, so हमने सब ब्रांचेस भी अब बनानी होंगी. देखो ये फर्स्ट पिक हो जाएगा, ये वाला जो है ये फर्स्ट पिक में आ जाएगा, और फर्स्ट के बाद सेकंड पिक के लिए आप ये कर लोगे, ठीक है. तो आपने 2 बॉल्स पिक करनी है, तो ये बात याद रखना 2 ब्रांचेस बनेंगी. अगर थर्ड पिक भी होता है ना, फॉर एग्जांपल इधर 2 की जगह लिखा होता है 3 balls आर चोजन एट रैंडम, तो फिर यहाँ पर फर्दर ब्रांचेस और बनती. तो अभी क्योंकि 2 ही बॉल्स पिक करनी थी, तो ये फर्स्ट पिक के आउटकम्स हैं और ये सेकंड पिक के आउटकम्स हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं इसको. फिर कहता है चोजन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट. नाउ सी दिस इज द की वर्ड दैट यू नीड टू लुक फॉर. एक चीज़ याद रखना, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इन एग्जामिनेशन, ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. जब तक इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड नहीं करोगे यू वोंट बी एबल टू राइट द करेक्ट आंसर. तो अभी कहता है विद रिप्लेसमेंट. एक और दफ़ा एक ऐसे का ऐसे ही सवाल आता है मगर उसमें विद की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट होता है. लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट एंड देन विल come back to this problem. See, now what does with replacement means? क्योंकि मुझे 2 दफ़ा बॉल चूज़ करनी है. फॉर एग्जांपल मैंने रेड बॉल चूज़ की, उसको बाहर निकाला, रेड बॉल दिखी और इस बॉल को वापस इधर रख दिया. तो इससे अब देखो एक चीज़ समझना, इससे फ़ायदा क्या हुआ. इससे होगा ये कि जो बॉल मैंने निकाली थी वो बॉल रख दी. तो मेरे पास फर्स्ट पिक के लिए, समझना बात, फर्स्ट पिक के लिए रेड बॉल्स मेरे पास थी 3 और टोटल बॉल्स थी मेरे पास 12. क्योंकि मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया, पहली दफ़ा मैंने इसको निकाला, चेक किया और इसको मैंने वापस रिप्लेस कर दिया, तो सेकंड पिक के लिए जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल होंगी रेड, फिर देखो 3 हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स भी यहाँ पर 12 भी हैं. मगर विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल आई चोज़ अ बॉल, मैंने यहाँ से एक बॉल चूज़ की, उसको मैंने निकाला, मैंने एक बॉल चूज़ की, उसको मैंने निकाला यहाँ से, नहीं 2 बॉल्स नहीं चाहिए, एक ही बॉल चाहिए. फॉर एग्जांपल
ये बॉल मैंने चूज़ की, इसको मैंने यहाँ से निकाला और निकालने के बाद मैंने इसको सेकंड पिक के लिए नहीं रखा। तो देखो जब मैं फर्स्ट पिक कर रहा था, फर्स्ट पिक के वक्त मेरे पास रेड बॉल्स कितनी थी, रेड बॉल्स मेरे पास 3 थी और टोटल बॉल्स मेरे पास थी 12। और जब मैं सेकंड पिक कर रहा हूँ तो सेकंड पिक के लिए क्योंकि मैंने रेड बॉल निकाली थी और उसको रिप्लेस नहीं किया, मैंने उसको निकाल के बाहर रख दिया, तो अब इस बैग में सेकंड पिक के लिए मेरे पास रेड बॉल्स कितनी रह जाएंगी 2 और टोटल बॉल्स मेरे पास रह जाएंगी 11। इसी तरीके से अगर ब्लू बॉल होती तो ब्लू बॉल 5 में से 4 रह जाती और टोटल बॉल्स 11 रह जाती, और ग्रीन होती तो 3 रह जाती ग्रीन बॉल सेकंड पिक के लिए और टोटल बॉल्स 11 रह जाती। तो ये बात समझिएगा कि जब भी हम विद और विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवाल कर रहे होते हैं, तो जब विद रिप्लेसमेंट होगा तो जो फर्स्ट पिक के लिए प्रोबेबिलिटी होगी वही सेकंड पिक के लिए भी प्रोबेबिलिटी होगी, मगर जैसे ही हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाले सवाल करेंगे तो जो भी मैंने कलर चूज़ किया उसकी एक बॉल कम हो जाएगी। तो एक तो उस कलर की पर्टिकुलर बॉल कम होगी, फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन है तो ग्रीन की फर्स्ट पिक के लिए 4 बॉल्स थी, सेकंड पिक के लिए मेरे पास 3 बॉल्स रह जाएंगी, और ऑब्वियसली एक बॉल अगर कम हो रही है तो टोटल बॉल्स भी कम हो जाएंगी। अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, मुझे उसने कहा है कि 2 बॉल्स आर चोजन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। ड्रॉ ट्री डायग्राम, तो ट्री डायग्राम किस तरह से बनाएंगे। अब देखो टोटल पिक्स हमारे पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स हमारे पास 3 हैं, तो ऑब्वियसली 3 ब्रांचेस बनेंगे, और 2 पिक्स हैं तो एक सब ब्रांच भी बनेगी। तो मैंने वही किया, मैंने पहले रेड ब्लू ग्रीन, इधर भी रेड ब्लू ग्रीन, क्योंकि फर्स्ट के बाद भी सेकंड पिक के लिए मेरे पास रेड ब्लू ग्रीन के ऑप्शन बचते हैं, ब्लू के बाद भी रेड ब्लू ग्रीन के ऑप्शन बचते हैं, और ग्रीन के बाद भी रेड ब्लू ग्रीन के ऑप्शन बचते हैं। तो नाउ अंडरस्टैंड, रेड की पहली प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/4, ब्लू की थी 5/12, ग्रीन की थी 1/3। ये पहले भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये नहीं समझ में आए कैसी प्रोबेबिलिटीज हैं तो ऊपर एग्जाम्पल डिस्कस की भी है, उसको एक दफ़ा वापस देख लें। अब देखो क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड यूज़ हुआ हुआ है विद रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब वो बॉल हमने निकाल के वापस रख दी, तो टोटल आउटकम्स पे या प्रोबेबिलिटीज़ पे कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो सेकंड पिक के लिए प्रोबेबिलिटीज़ होंगी वो एज इट इज़ आ जाएंगी। अगर फर्स्ट पिक के लिए रेड की 1/4 थी तो इसकी भी 1/4 रहेगी, ब्लू की 5/12 थी तो इधर भी 5/12 रहेगी, इधर 1/3 थी तो इधर भी 1/3 रहेगी। तो जब भी हम विद रिप्लेसमेंट के सवाल करेंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा प्रोबेबिलिटीज़ में, जो प्रोबेबिलिटीज़ फर्स्ट पिक के लिए थी वही प्रोबेबिलिटीज़ सेकंड पिक के लिए रह जाएंगी। मगर जब मैं विदाउट रिप्लेसमेंट करता हूँ ना, अगर सेम सवाल मुझे कहता है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट में अब क्या है, मैंने एक बॉल चूज़ की, अब उसके बाद उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया, मतलब वो बॉल कम हो गई। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पिक में मैंने रेड बॉल चूज़ किया, अब देखो ये समझना, फर्स्ट पिक में अगर मैंने रेड बॉल चूज़ की है तो अब सेकंड पिक के लिए एक रेड बॉल कम हो जाएगी। इनिशियली वी हैड 3 रेड बॉल्स एंड वी हैड 3 रेड बॉल्स एंड 12 टोटल बॉल्स, अब 2 रेड बॉल्स रह जाएंगी और 11 टोटल बॉल्स रह जाएगी। तो अब जो सेकंड पिक के लिए प्रोबेबिलिटी होगी वो बन जाएगी 2/12। जो पहले पिक के लिए हमारे पास ब्लू की प्रोबेबिलिटी 5/12, क्योंकि नंबर ऑफ 5 ब्लू बॉल्स तो सेम ही रहेंगी क्योंकि फर्स्ट पिक में हमने रेड चूज़ किया है, तो सेकंड पिक में ब्लू तो विल रिमेन 5, मगर टोटल में क्योंकि एक रेड कम हुआ है तो अब वो जो 12 था वो 11 रह जाएगा। और सेम गोज विद ग्रीन, ग्रीन के नंबर ऑफ बॉल सेम रहेंगे मगर टोटल में से एक माइनस हो जाएगा। मगर फॉर एग्जांपल अगर पहला बॉल हमने ब्लू चूज़ किया था तो अब रेड की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, रेड की क्योंकि 3 बॉल्स इंटैक्ट हैं, मगर टोटल बॉल्स में से एक ब्लू बॉल कम हो गई, जो 12 बॉल्स थी उनमें से एक ब्लू बॉल कम हो गई। सेम गोज विद, अच्छा ब्लू बॉल क्योंकि एक हम ऑलरेडी फर्स्ट पिक में निकाल चुके हैं तो सेकंड प्रोबेबिलिटी ब्लू की एक माइनस में आएगी, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी क्योंकि ब्लू बॉल हमने चूज़ की। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रीन बॉल चूज़ कर लेते हैं तो पहली प्रोबेबिलिटी ग्रीन की तो टोटल नंबर ऑफ बॉल सेम रहेगी, मगर क्योंकि एक ग्रीन बॉल कम हो गई तो 12 में से अब वो 11 रह जाएंगी टोटल बॉल्स। ब्लू बॉल्स 5 की 5 रहेंगी, मगर टोटल बॉल में से क्योंकि एक ग्रीन कम हो गई तो अब 11 रह जाएंगी। और क्योंकि ग्रीन बॉल हमने एक निकाली है पहले में से, तो अब ग्रीन बॉल की जो शुरू में प्रोबेबिलिटी थी 4/12 वो अब रह जाएगी 3/11। सो दिस इज़ हाउ विल सॉल्व। I'll मेक अनदर वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, I'll अपलोड इट बाय टुमारो, तो उसमें विल सॉल्व सम पास्ट पेपर क्वेश्चन, तो उसमें ये और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, विल प्रैक्टिस इट तो ये थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और चीज़ है विच इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिटी डायग्राम। नाउ व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी डायग्राम? प्रोबेबिलिटी ट्री हमें जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं
किसी भी इवेंट में उसको बताता है, पॉसिबिलिटी डायग्राम हमें बताती है कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 डाइस को रोल किया, एक डाइस था ब्लू, एक था रेड, और मुझे कहता है जो भी उस पर रिजल्ट आ रहा है ना, जो भी फेसेस आ रहे हैं, लेट से पहले ब्लू डाइस पे आया 1 और रेड डाइस पे आया 3, तो मैंने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। उन दोनों को जो ऐड करूँगा वो रिजल्ट बनेगा, मतलब 1 + 3 विल बी 4 और 4 मेरा आंसर होगा। तो मुझे कहता है ड्रॉ द पॉसिबिलिटी डायग्राम। पॉसिबिलिटी डायग्राम देखो किस तरीके से बनाओगे, क्योंकि मुझे आंसर में ऐड करके लिखना है, तो अगर ब्लू पे 1 है और रेड पे भी 1 है तो उसका आंसर 2 हो जाएगा, ब्लू पे 2 है और 1 है तो 3 हो जाएगा, 4 5 6 7, इसी तरीके से 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल 1 + 5 will give me 6, 2 + 5 will give me 7, 3 + 5 will give me 8 and 9 and 10 and 11, and it will be like this. I hope you guys get it. अच्छा, इसके बाद इंशाल्लाह एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम पॉसिबिलिटी डायग्राम के भी सवाल सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ट्री के भी डायग्राम सॉल्व करेंगे। टिल देन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।